Hello students, in this video we are going to discuss the MCQ questions on the topic transpiration. Now पहले समझते हैं कि ट्रांसपिरेशन चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपिरेशन चैप्टर में डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, गटेशन, ब्लीडिंग ये इंपॉर्टेंट है. कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपिरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, उनको कब यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपिरेशन पूल का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपिरेशन पूल का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है. देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल अडेप्टेशन फॉर ट्रांसपिरेशन वो क्या है, उनके ऊपर उनके एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं. एंड देन एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, बिकॉज प्लांट फिजियोलॉजी में एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जनरली पूछे ही जाते हैं. आई मीन अभी तक जब आपका थियोरेटिकल पेपर होता था तो वहाँ तो 2 क्वेश्चन आपके होते ही थे, अभी भी आएंगे मेरे हिसाब से. तो वो क्वेश्चन हो सकते हैं स्टोमेटा गार्ड सेल की वर्किंग के ऊपर, कि कब स्टोमेटा ओपन होता है, कब स्टोमेटा क्लोज होता है, वो इम्पॉर्टेंट है. हाउ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्टोमेटा, लेंटिकल्स का लोकेशन क्या है, that is also very important question. So I try to find out few questions for this one video. In another video we will discuss more questions. So let's start the discussion of MCQ questions. Hello. So our first question is the metal ion involved in stomatal regulation is, the correct answer is potassium. Now in this question you need to understand that particular potassium ion theory is not in the syllabus, but you are supposed to understand that particular ion which is involved in stomatal regulation is potassium ion. That particular question could be asked in your examination, right? The second question is increase in carbon dioxide concentration around leaf causes. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिक फंक्शन क्या है, या स्टोमेटा का बेसिक फंक्शन क्या है. द बेसिक फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू inhale carbon dioxide while doing photosynthesis. So if already carbon dioxide concentration is high, then there is no need to open the stomata. So the correct answer is there will be no effect on stomatal opening. Sorry. The correct answer would be complete closure of stomata, right? After that, the next question is transpiration occurs from leaves also, transpiration occurs from stem also, transpiration occurs from the root in some of the plants, but अभी हम यहाँ पे root पर बात नहीं करने वाले हैं. Transpiration occurs from the leaves and stems, so here the correct answer is all aerial parts. Our next question is what percentage of water absorbed by herbaceous plant is lost during the transpiration? Whatever the water is absorbed by the plant, out of that 99% of water is lost during the process of transpiration. Hardly 1% of water is used in any of the metabolic reaction, especially photosynthesis. तो यदि हम यहाँ पर सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 90%. Okay, so our correct answer is 90%. Our next question is stomatal open during the daytime because the guard cells photosynthesis and produce osmotically active sugar, are thin walled, are bean shaped, have to help in gaseous exchange. Yes, guard cells, देखिए गार्ड सेल्स जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प नहीं करते. स्टोमा है वो जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा. गार्ड सेल्स बीन शेप्ड होते हैं, दैट इज ट्रू, बट गार्ड सेल्स बीन शेप्ड होने की वजह से वो ओपन होते हैं डे टाइम में, कोई ऑप्शन नहीं बनता. आर थिन वॉल्ड, गार्ड सेल तो थिन वॉल्ड होते ही नहीं है. गार्ड सेल का इनर वॉल जो होता है वो थिक होता है. ये देखिए, ये आपने डायग्राम को क्लास में अपने में किया होगा, और ये जो इनर वॉल होता है ये थिक होता है. ओके, आउटर वॉल उसका थिन होता है. एंड द अनदर ऑप्शन इज फोटोसिंथेसिस, because guard cells are supposed to do photosynthesis. Yes, guard cells are supposed to do photosynthesis. यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं which helps in photosynthesis. So the correct answer is A, photosynthesis, right?
Our next question is, in which of the following plant would metabolism be hindered if the leaves are coated with wax on their upper surface? The correct answer is lotus. बिकॉज लोटस में क्या होगा, लोटस में जो ट्रांसपिरेशन होता है, लोटस सबमर्ज प्लांट नहीं है, लोटस में उसके लीव्स ऊपर फ्लोट करते हैं, तो उसको ट्रांसपिरेशन करना होता है स्टोमेटा के थ्रू, और यदि आपने स्टोमेटा को वैक्स से बंद कर दिया, then they are not able to do transpiration. Our next question is of the process which occur in leaves, the one which may lower their temperature is, that is transpiration. During transpiration, water is lost in the form of water vapor. Now, if the water is lost in the form of water vapor, then to convert it into the vapor form, the energy will taken by the plant itself, which lower the temperature. रेस्पिरेशन में टेम्परेचर बढ़ता है, फोटोसिंथेसिस में टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, बट कम तो बिल्कुल भी नहीं होता. हाइड्रोलाइसिस इज वन ऑफ द प्रोसेस इन विच वाटर इज डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, तो हम डी चॉइस पर भी नहीं जाएंगे. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर ऑफ गटेशन इज. नाउ व्हाट इज गटेशन? In guttation, water is lost in the form of water and salts, और water is lost through hydrothores. तो प्योर वाटर नहीं हो सकता इसका आंसर. प्योर वाटर होता है ट्रांसपिरेशन में, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस्ट होता है वेपर के फॉर्म में. लेटर ऑन दैट वेपर कन्वर्ट्स इनटू द कंडेंसेशन के बाद में प्योर वाटर. सो ए चॉइस इज रॉन्ग. वाटर विद डिजॉल्व सॉल्ट्स इज अ करेक्ट चॉइस, बिकॉज जैसा पानी उसमें होता है वो एज इट इज ही आता है बाहर. सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड नो, क्योंकि वाटर का लॉस होता है इसमें. एंड कंडेंस्ड वाटर वेपर नहीं, वो ट्रांसपिरेशन का पॉइंट हो सकता था, बट यहाँ नहीं होगा. तो यहाँ करेक्ट आंसर है आपका बी, दैट इज वाटर विद डिजॉल्व सॉल्ट्स. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन अंडर विच ट्रांसपिरेशन वुड बी मोस्ट रैपिड. देखिए, ह्यूमिडिटी जब भी होती है तो ट्रांसपिरेशन कम होता है. द रीज़न इज हाई ह्यूमिडिटी का मतलब है द एटमॉस्फेयर इज ऑलरेडी होल्डिंग वाटर मॉलिक्यूल. अब यदि वहाँ पर ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर और वाटर वेपर एक्यूमुलेट नहीं हो सकते हैं. तो फर्स्ट चॉइस इज रॉन्ग. एक्सेस ऑफ वाटर इन द सॉइल. इफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द सॉइल देन इट कैन एब्जॉर्ब मोर वाटर. ट्रांसपिरेशन उसमें रैपिड हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट द मोस्ट स्पेसिफिक कंडीशन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उतना उसने लिया ही हो टेम्परेचर सॉइल से पानी को. लो ह्यूमिडिटी फेवरेबल कंडीशन है ट्रांसपिरेशन के लिए, क्योंकि लो ह्यूमिडिटी का मतलब है कि वहाँ पे ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट नहीं है, सो इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. हाई टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा. सो सी चॉइस इज करेक्ट. लो विंड वेलोसिटी. विंड वेलोसिटी यदि कम है तो क्या होगा? विंड वेलोसिटी का काम क्या है? विंड कैरी द वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स. तो यदि विंड वेलोसिटी इज लो, इट विल कैरी वाटर मॉलिक्यूल्स स्लोली, तो वो अगेन कम हो जाएगा, राइट. सो हियर द करेक्ट आंसर इज पार्ट सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. पोरोमीटर हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है. पोटोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. ऑक्जेनोमीटर भी आपने नहीं पढ़ा है, वैसे वो ग्रोथ के लिए होता है. फोटोमीटर भी आपने नहीं पढ़ा है, तो यहाँ तो सीधे सीधे आंसर आपको पता चल रहा है. विल्टिंग ऑफ प्लांट्स. विल्टिंग क्या होता है? प्लांट का मुरझाना. तो विल्टिंग कब होगा? जब एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा. रेस्पिरेशन का विल्टिंग से कोई लेना देना नहीं है. रेस्पिरेशन में तो हम फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं. विल्टिंग लॉस ऑफ वाटर से रिलेटेड है. फोटोसिंथेसिस में हम वाटर को यूज़ करते हैं, वाटर प्रोड्यूस करते हैं, तो अगेन वो भी विल्टिंग से रिलेटेड नहीं है. एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, और विल्टिंग में हम वाटर को लॉस कर रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसपिरेशन. क्वेश्चन नंबर 12. द प्लांट डाई ड्यू टू विल्टिंग व्हेन. अब विल्टिंग का मतलब क्या है? लॉस ऑफ वाटर. विल्टिंग कब होगा? जब वाटर या तो सप्लाई नहीं हो रहा है या एक्सेस में लॉस हो रहा है. अवेलेबल लाइट इज रिड्यूस टू हाफ. नो लॉजिक. यदि लाइट की अवेलेबिलिटी कम है, स्टोमेटा कम ओपन होंगे, कम ट्रांसपिरेशन होगा, कम वाटर लॉस होगा, ये तो नहीं होगा. जाइलम इज ब्लॉक्ड कुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यदि जाइलम ब्लॉक्ड है तो वाटर का कंडक्शन नहीं होगा. वाटर का कंडक्शन नहीं होगा तो फिर ट्रांसपिरेशन किसका होगा?
पानी कैसे पहुंचेगा लीव्स में? तो बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लीव्स विल्ट कर सकते हैं. फ्यू रूट्स आर ब्रोकन, पॉसिबिलिटी है इस आंसर की, लेकिन यहाँ पर ये राइट चॉइस नहीं है. रीज़न कि यदि कुछ रूट्स ब्रोकन है तो वो सप्लाई ऑफ वाटर को ख़त्म नहीं कर देंगे. फ्लोएम का काम तो फूड कंडक्शन होता है, फासे फ्लोएम फासे फूड, तो वो तो बिल्कुल ही आंसर नहीं बनता. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ द शेप ऑफ लिक्विड फ्रॉम द टिप ऑफ इंजर्ड पार्ट इज कॉल्ड, दैट इज द ब्लीडिंग. यहाँ पे दो चीज़ें हैं. वन इज if the water is lost from the margin of the leaves or even from the tip of the leaves, that is the guttation. But यदि injured part दिया हुआ है then the answer will be bleeding. Next question is a specialized multicellular structure in leaves which excrete water droplets, that is a hydathoid. Hydathoid is a specific part in a plant और वो भी कहाँ पर present है? That is present on the margin of leaves. या आप वेन्स के एंड पर भी बोल सकते हैं. हाइडाथोड्स प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प्स इन गटेशन, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ लीफ वुड कॉज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. दिस क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. प्रोसेस ऑफ वाटर एग्जिक्यूशन थ्रू हाइडाथोड्स इज कॉल्ड, दैट द करेक्ट आंसर इज गटेशन. और गटेशन का बेसिक रीज़न होता है हाई रूट प्रेशर, राइट. या आप यूँ कहिए गटेशन तब होगा जब कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है ट्रांसपिरेशन के लिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन. देखिए यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकता है. ह्यूमिडिटी है, सॉरी ह्यूमिडिटी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करती है, लाइट रेगुलेट करती है, टेम्परेचर रेगुलेट करती है, विंड करती है. बट लाइट की प्रेजेंस में इंक्रीज होता है, टेम्परेचर की प्रेजेंस में इंक्रीज होता है, विंड की प्रेजेंस में इंक्रीज होता है. तो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि वो किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है. तो एक लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ह्यूमिडिटी, बिकॉज दैट इफ इट इंक्रीज इट लोअर्स द ट्रांसपिरेशन. तो यहाँ हमें समझ आ रहा है कि कंडीशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो ह्यूमिडिटी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ओल्ड ट्रीज और वुडी प्लांट्स ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू. वुडी प्लांट्स जो है उसके अंदर ट्रांसपिरेशन लेंटिकल्स के थ्रू होता है. याद रखिए कि स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं वो लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं. एंड ओल्ड ट्रीज या वुडी प्लांट्स या बार्क के ऊपर लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और लेंटिकल्स के थ्रू ही ट्रांसपिरेशन होता है. लेंटिकल्स के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है इट अकर्स डे एंड नाइट, while the transpiration through stomata occurs during the daytime only. Next question is, in the process of transpiration, the water from the ground to the root moves due to. अब यहाँ पर क्योंकि हम ट्रांसपिरेशन की बात कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन मेंशन भी है, तो बच्चा तुरंत से ना ट्रांसपिरेशन पूल सोचने वाला है. बट ट्रांसपिरेशन पूल इज़ नॉट द राइट चॉइस. द राइट चॉइस इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्यों राइट चॉइस है? क्योंकि क्वेश्चन ये है कि ग्राउंड से रूट से पानी ऊपर तक कौन लेके जाता है? दैट इज ऑस्मोसिस. वहाँ तो ट्रांसपिरेशन पूल का काम तो उसको खींचना है, उसको पुश करने का काम जो है वो ऑस्मोसिस का है. इन अ हॉट सनी डे वाटर इन प्लांट्स इज. अब सनी डे है तो इसका मतलब ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ रहा है. ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ रहा है तो ट्रांसपिरेशन पूल बढ़ रहा है. ट्रांसपिरेशन पूल बढ़ रहा है तो पानी को वो ऊपर पुल करेगा. पुश तो रूट प्रेशर की वजह से होगा, सक्ड अप यहाँ पर नहीं आएगा. सो करेक्ट आंसर इज पुल्ड अप. मिड डे क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू. दिन के समय कई बार स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं ड्यू टू मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. यदि फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है तो कायदे से स्टोमेटा ओपन होना चाहिए था. फटीग, प्लांट्स का क्या फटीग है हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे. हाई विंड वेलोसिटी, यदि विंड वेलोसिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, उस टाइम पे तो स्टोमेटा को ओपन होना चाहिए. एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, यदि एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन है वाटर लॉस ज़्यादा होगा और उसकी वजह से फिर उसको कंट्रोल करने के लिए हम स्टोमेटा को क्लोज करते हैं. हम नहीं, आई मीन प्लांट क्लोज करते हैं. नो स्टोमेटा आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट किंगडम एक्सेप्ट. बनता तो नहीं है बच्चों क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से, बट क्योंकि 9th में हमने पढ़ा हुआ है एल्गी और फंजाई में कोई फर्दर डिवीजन नहीं है, रूट स्टेम प्लांट एंड ऑल मतलब ऐसे करके, तो यहाँ आंसर जो है वो एल्गी एंड फंजाई बनेगा.
एंजियोस्पर्म क्वाइट एक्टिव आई मीन एडवांस्ड प्लांट हैं, तो उनके पास में स्टोमेटा होते ही हैं। जिम्नोस्पर्म पर भी होते हैं। साइकेड्स जिम्नोस्पर्म का ही एक पार्ट है। फर्न अपने आप में एक अच्छा खासा प्लांट है जिसमें प्लांट होते हैं, रूट होते हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, तो फिर वहाँ होते ही हैं। So correct answer is algae and fungi. What is the base of stomatal opening? The base of stomatal opening is endosmosis. Decrease in cell sap concentration नहीं होगा क्योंकि cell sap होता है आपका वैक्यूल के अंदर। Plasma lives of guard cell, हम सोच सकते थे इस ऑप्शन के बारे में, लेकिन हमें कोई कंडीशन नहीं मेंशन है कि प्लाज्मा में क्या है, वाटर ज़्यादा है, वाटर कम है, तो वो नहीं ज़्यादा बेटर चॉइस है। एंडोस्मोसिस इज अ बेटर चॉइस क्योंकि जब स्टोमेटा वाटर को एब्जॉर्ब करता है इट बिकम टर्जिड एंड दैट कंडीशन स्टोमेटा इज ओपन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि जब स्टोमेटा टर्जिड कंडीशन में है देन स्टोमेटा इज ओपन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटली स्टॉप्स एट। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन रात में नहीं हो सकता क्योंकि स्टोमेटा सिर्फ तब खुलते हैं जब सनलाइट होती है। The magnitude of water loss as a result of transpiration will be greater when? मतलब कि ट्रांसपीरेशन का मैग्नीट्यूड कब ज़्यादा होगा? लीफ एरिया इज ग्रेटर, हाँ, मोर द लीफ, मोर एरिया ऑफ द लीफ, मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा, ग्रेटर द ट्रांसपीरेशन, सही ऑप्शन है। देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, मोर एवेपोरेशन, मोर ट्रांसपीरेशन, सही ऑप्शन है। देयर इज इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, मोर विंड वेलोसिटी, it can carry water vapor easily, more transpiration, all of the above is the right choice. The cause of transpiration, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। द कॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन दो ऑप्शन हो सकते हैं इसके, हायर रूट प्रेशर या आपको ऐसा कोई क्वेश्चन ऑप्शन मिल सकता है द कंडीशन विच नॉट फेवर ट्रांसपिरेशन, क्योंकि जब ट्रांसपिरेशन नहीं होता तभी गटेशन होता है। तो यदि ट्रांसपिरेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन लो ह्यूमिडिटी है, तो यदि कंडीशन हाई ह्यूमिडिटी दिया हुआ है तो गटेशन होगा, लो टेम्परेचर पे गटेशन होगा। बट यहाँ पर तो हमें हायर रूट प्रेशर पे गटेशन दिया हुआ है ऑप्शन में, और हायर रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन, दैट्स ट्रू। स्टोमेटा कैन ओपन एट नाइट ऑल्सो ओनली इन केस ऑफ ज़ेरोफाइट्स, बिकॉज वो थोड़ा सा रात में वाटर को कंटेंट को मेंटेन करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो सिर्फ उनमें होता है, अदरवाइज नहीं होता। बट आपको क्वेश्चन यदि ये दिया हुआ है कि स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली, तो आप डे पर ही जाएंगे, नाइट वाले क्वेश्चन के ऑप्शन पर नहीं जाएंगे। विल्टिंग ऑफ प्लांट्स अकर्स ड्यू टू हाई रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, रूट प्रेशर से नहीं, रूट प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाटर तो एब्जॉर्ब होगा। गटेशन में तो वाटर लॉस होता है, बट गटेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि गटेशन से वाटर लॉस कंपैरेटिवली कम होता है, ट्रांसपीरेशन से ज़्यादा वाटर लॉस होता है। Which of the following helps in opening of stomata? Already we have discussed this question. Potassium ion. Guttation occurs when plant absorb water by root pressure. क्योंकि रूट प्रेशर जब ज़्यादा होता है तभी गटेशन होता है। ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। मैंने इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार इसलिए डाला हुआ है, एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और द पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन अ 2 or 3 different ways. Okay. The internal factor for transpiration is oxygen is not at all a factor for transpiration. Carbon dioxide is a factor, but it is an environmental factor. Nitrogen is not a factor in the transpiration directly. So sunken stomata is an internal factor which affect the rate of transpiration. एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि sunken stomata is present. It is present in nerium, और sunken stomata का मतलब होता है when stomata is deep inside. Transpiration is mainly a process of imbibition, no. रेस्पिरेशन नो, ऑस्मोटिक प्रेशर नो, डिफ्यूजन, बिकॉज ट्रांसपिरेशन में बेसिकली हो क्या रहा है, वो गैसियस एक्सचेंज ही हो रहा है, तो वाटर भी जो लॉस्ट हो रहा है वो वेपर के फॉर्म में हो रहा है, तो डिफ्यूजन इज द, जब भी गैसियस एक्सचेंज की बात आती है तो डिफ्यूजन की ही बात हो रही है। विच वन डिड नॉट शो ट्रांसपिरेशन? एक्वाटिक प्लांट विथ फ्लोटिंग लीव्स, हमने अभी लोटस का एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें ट्रांसपिरेशन होता है। एक्वाटिक सबमर्ज्ड प्लांट जो पानी में ऑलरेडी डूबे पड़े हैं वो तो क्या ही ट्रांसपिरेशन करेंगे बच्चों। So correct answer is aquatic submerged plant. Okay. Plant growing in hilly areas उनमें होता है, desert में भी होता ही है. So this all I want to discuss for this particular chapter. We will have the another video, one more set of questions for the topic transpiration that we will discuss later on. Till then, take care. Goodbye. Thank you.